Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we will analyze the properties of breadth first search as well as its time complexity. So let's begin. Now coming to the properties of breadth first search, the first property says that for each layer Lj that is produced by the BFS, it will consist of all nodes at distance j from S. तो ये हम already देख चुके हैं ना graph. So let's consider a graph. सपोज ये हमारा कोई ग्राफ गिवन है एंड लेट अस सपोज दिस इज आवर सोर्स वर्टेक्स, राइट? नाउ फ्रॉम दिस सोर्स वर्टेक्स दिस नोड इज एट डिस्टेंस 1. सिमिलरली दिस नोड इज एट डिस्टेंस 1. दिस इज सोर्स नोड इज एट डिस्टेंस 0 एंड दिस नोड इज एट डिस्टेंस 2 फ्रॉम द सोर्स नोड. तो हर एक लेयर पे जो भी नोड्स होंगी, लेट्स से L1 लेयर पे जितनी भी नोड्स हैं consist of all nodes which are at distance 1 from S, right? L1 पे कौन कौन सी नोड्स है? ये वाली नोड एंड ये वाली नोड. सिमिलरली L2 पे जो नोड्स होगी वो होंगी एट डिस्टेंस 2 फ्रॉम S, राइट? और अगर कोई नोड के बीच में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है देन दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर ब्रेडथ फर्स्ट ट्री. सो लेट्स से सपोज इस ग्राफ के साथ हमें एक और ये कंपोनेंट गिवन है, राइट? नाउ ये जो दो नोड्स हैं ये सेक्लूडेड है फ्रॉम दिस ग्राफ. देयर इज नो कनेक्टिविटी ऑफ दीज टू नोड्स विद आवर सोर्स नोड S, राइट? सो दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्री बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज नोड्स एंड देयर इज नो पाथ दैट एग्जिस्ट फ्रॉम S टू दीज नोड्स. सो अगर कोई नोड के बीच में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं होगी देन दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर कनेक्टेड कंपोनेंट और यू कैन से आवर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्री. सो इफ एनी नोड फेल्स टू अपीयर इन एनी ऑफ द लेयर्स दैट मीन्स उस नोड का कोई पाथ नहीं है फ्रॉम S. सो एज इन दिस एग्जाम्पल, सो दीज टू नोड्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्री. दैट मीन्स दे विल नॉट अपीयर इन एनी ऑफ द लेयर्स, right? And since they are not appearing in any of the layers, that means कि कोई path नहीं है of these nodes from S in our graph. So this is the first property of breadth first search, that for any layer Lj produced by BFS, it will consist of all nodes which are at distance j from S. So layer 1 में वो सारी nodes होंगी जो है at distance 1, layer 2 में वो सारी nodes जो है at distance 2 and so on. So the second property of breadth first search says that breadth first search not only determines the nodes that S can reach, but it also determines the shortest paths to them. So this we have already seen. जब हमने final graph देखा था उसमें हमने देखा था हर एक नोड का डिस्टेंस क्या है from the source node. So breadth first search traversal ना कि सिर्फ ये बताता कि किन किन नोड्स की कनेक्टिविटी है from S, but it also tells you कि उन नोड का डिस्टेंस क्या है from the source node. The third property says that the final result of BFS is nothing but a spanning tree, or we can say the breadth first search tree. So this also we have seen in the graph कि जो हमें final result मिलता that was a spanning tree. Now the fourth property says that let T be the breadth first search tree. Let X and Y be nodes in T belonging to layer Li and Lj respectively, and let XY be an edge of G. Then I and J differ by at most 1. So what do we mean by this property is, let's say this is our graph G. अब जब हमने इसका breadth first search tree draw किया था, so our breadth first search tree was, let's say this is our breadth first search tree जो हमने draw करी थी. This is our T. Now it says let T be the breadth first search tree. Let X and Y be nodes in T belonging to layer Li and Lj. Let's say ये हमारा X है and this is our Y. So this is L1 and this is L2. This is layer 1 क्योंकि 1 distance पे from the source node. V belongs to layer 2 because 2 distance पे from the source node. ये हमने अभी भी प्रॉपर्टी में देखा था कि जो सी नोड आपकी जिस लेयर में अपीयर होगी वो उतनी ही डिस्टेंस पे होती है from the source node. Let X and Y be an edge of G. So X और Y के बीच में कोई edge है हमारा in the graph G. So this is our edge. राइट तो ये है हमारा XY edge in our graph G. So it says that I and J differ by at most 1. So अगर कोई edge exist करता है दो nodes के बीच में in our graph G,
तो उन दोनों नोड्स का जो डिस्टेंस होगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, राइट? नाउ हाउ कैन वी से दिस? सो लेट्स प्रूव दिस बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि एक्स एंड आई और जे का जो डिस्टेंस है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है? लेट्स से जे माइनस आई इज ग्रेटर देन 1। अगर j माइनस आई ग्रेटर देन 1 है, सो कैन वी राइट दिस एज j minus 1 greater than I, or we can write it as I less than j minus 1. Right? Now, now how can we say this? जब भी हम breadth first search tree इसके लिए ड्रॉ करेंगे, जब हमने x की नोड्स को एक्सप्लोर करना शुरू करा, ठीक है, जब हमने ये देखना शुरू करा कि x से कौन कौन से एजेस हैं जो इंसिडेंट है, राइट? सो जब हम x की एडजेंसी लिस्ट को स्कैन करेंगे अपने ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल के टाइम पे, इन दैट केस इस x से जो भी नोड्स इंसिडेंट होंगी वो या तो उससे एक लेयर पहले होंगी या उससे एक लेयर बाद में होंगी, राइट? सो x से कौन कौन सी नोड्स इंसिडेंट है? s इंसिडेंट है एंड v इंसिडेंट है। s कौन सी लेयर में? s है लेयर 0 में, और v कौन सी लेयर पे? v है लेयर 2 में, राइट? सिमिलरली अगर हम किसी और नोड के लिए भी देखें, लेट्स से हमारी है t नोड, ठीक है? इन t और लेट्स से ये दिस इज आवर एज जो हमें कंसीडर करना है। अब कौन कौन सी नोड्स हैं जो t से एडजेसेंट है? t से एडजेसेंट है u एडजेसेंट है, x एडजेसेंट है एंड w एडजेसेंट है, राइट? सो जो भी नोड्स t से एडजेसेंट है वो या तो उससे एक लेयर बाद में है या उससे एक लेयर पहले पे, राइट? सो t w से एडजेसेंट है वो लेयर 1 में है, t x से एडजेसेंट है वो लेयर 2 में है, t u से एडजेसेंट है वो लेयर 3 में है, राइट? सो इन दोनों का जो डिस्टेंस अगर हम देखें, और t का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द सोर्स नोड? t का डिस्टेंस है 2, सो 2 minus 1 be 1, 2 minus 2 be 0 and 3 minus 2 this is also 1. So what we are trying to say is कि किसी भी नोड को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और उन दो नोड्स के बीच में अगर एज एग्जिस्ट करता है इन आवर ग्राफ, तो दे विल नॉट डिफर बाय मोर देन 1 डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द लेयर्स। अगर कोई नोड्स के बीच में जैसे एज ही नहीं एग्जिस्ट करता, लेट्स से अगर हम s और y की बात करें, s कौन सी लेयर पे? 0 लेयर पे है, y कौन सी लेयर पे? 3rd लेयर पे, बट s और y के बीच में तो कोई एज ही नहीं एग्जिस्ट करता, राइट? सो ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी वैलिड होगी व्हेन देयर विल बी एन एज in that between two nodes in the graph G. Now let's consider the proof of this. Suppose हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि अगर I and J का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 है, राइट? सो कंसिडर अ पॉइंट इन द BFS एल्गोरिथम व्हेन एजेस इंसिडेंट टू x वर बीइंग एग्जामिन्ड। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम BFS ट्रेवर्सल में एजेस जो इंसिडेंट है x से उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट पे जो भी एजेस उससे इंसिडेंट होंगे, सिंस x बिलोंग्स टू लेयर Li, x कौन सी लेयर को बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है लेयर L1 को, तो द ओनली नोड्स व्हिच आर डिस्कवर्ड फ्रॉम x बिलोंग्स टू लेयर Li+1 और अर्लियर, ये भी हम देख चुके हैं। तो जो भी नोड्स x से इंसिडेंट होंगी वो या तो लेयर Li+1 को बिलोंग करेंगी या उससे एक लेयर पहले बिलोंग करेंगी, ये भी हम ग्राफ में ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन सी नोड्स इंसिडेंट है? v और s। s बिलोंग कर रहा है टू लेयर 0 एंड v बिलोंग कर रहा है टू लेयर 2। सो नाउ अगर y जो है वो नेबर है x का, इन दैट केस y वुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय दिस पॉइंट, राइट? तो अगर y जो है x का नेबर है तो इस टाइम तक हम y को ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके होंगे, राइट? तो या तो y बिलोंग करेगा टू लेयर Li+1 और इट विल बिलोंग टू लेयर Li-1। इन दोनों ही केसेस में I and J का जो डिफरेंस है वो 1 ही रहेगा, राइट? सो इट विल नेवर एक्सीड। नाउ लेट्स एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द BFS algorithm. Now the first step is that for each vertex that is belonging to the graph, तो क्योंकि हर एक वर्टेक्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं, उसके कलर को इनिशियली व्हाइट कर रहे हैं, उसके डिस्टेंस को इन्फिनिटी कर रहे हैं और उसके पेरेंट को निल कर रहे हैं, सो हाउ मच टाइम दिस विल टेक? सो स्टेप्स टिल 1 to 4 विल टेक ऑर्डर ऑफ v टाइम। v हमारे वर्टिसेस हैं, सो हर एक वर्टेक्स के लिए काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ v।
देन इट से सोर्स वर्टेक्स के कलर को ग्रे कर दो, उसके डिस्टेंस को 0 कर दो, उसके पेरेंट को नील कर दो। तो सोर्स वर्टेक्स के लिए ये काम तो हम एक ही बार कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ऑल दीज 3 स्टेप्स विल टेक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। देन इट सेज इनिशियलाइज कर दो Q को empty, दिस विल ऑल्सो टेक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। देन इट सेज NQ दी सोर्स वर्टेक्स को हम सिर्फ NQ कर रहे हैं, दिस विल ऑल्सो टेक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। नाउ इट सेज एग्जीक्यूट द while लूप जब तक Q जो है वो empty नहीं हो जाता। सो U इक्वल टू DQ। अब हम DQ ये जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे ग्राफ को सबके लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनको NQ कर रहे हैं, देन उनको हम DQ कर रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में? ऑर्डर ऑफ V टाइम। V हमारे टोटल वर्टिसेस हैं। देन इट सेज स्टेप 12 फॉर ईच वर्टेक्स दैट इज बिलोंगिंग टू द एडजेसेंसी लिस्ट। तो हर एक वर्टेक्स की हम एडजेसेंसी लिस्ट को स्कैन कर रहे हैं। नाउ अब ये करने में हमें कितना टाइम लगेगा? जब हमने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखी थी तो उसको हमें करने में कितना टाइम लग रहा था? ऑर्डर ऑफ V प्लस E टाइम। सो ये काम हम कितनी बारी कर रहे हैं? दिस स्टेप इज बीइंग एग्जीक्यूटेड जो है हमारी टोटल लेंथ ऑफ द एडजेसेंसी लिस्ट, एंड टोटल लेंथ ऑफ द एडजेसेंसी लिस्ट क्या है? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन आवर इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो दिस स्टेप विल टेक scanning the adjacency list for all the vertices will take time that is equal to twice the number of edges. So order of 2e time, or we can say order of e time, right? Now if v dot color equal to white, उसके कलर को हम ग्रे कर देंगे, उनके डिस्टेंस को 1 कर देंगे एंड उनके पेरेंट को u कर देंगे। सो हर एक वर्टेक्स के लिए ये काम करने में हमें कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, दैट इज कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? और बार बार इनको करने का टाइम हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं इन आवर फॉर लूप। नाउ इट सेज NQ दी वर्टिसेस। अब हर एक वर्टेक्स को NQ करेंगे, कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ V टाइम। वर्टेक्स के कलर को ब्लैक कर देंगे, हर एक वर्टेक्स के लिए हमें काम कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ V टाइम। सो टोटल टाइम कितना लगा हमें BFS एल्गोरिथम को रन करने में? इट टेक्स ऑर्डर E प्लस V टाइम। So this is the time complexity of the BFS algorithm. Now the next is exploring the connected component. Now what do we mean by connected component? जितने भी नोड्स को हम डिस्कवर करते हैं फ्रॉम आर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सो बेसिकली वो नोड्स वो होती हैं जिनको हम रीच कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड S, राइट? सो जो भी हमने अभी ग्राफ देखा था उसमें भी हमने क्या देखा था? जितनी भी हमारी नोड्स हैं जिनको हम रीच कर पा रहे हैं फ्रॉम द सोर्स नोड, वो हमारी पार्ट थी और ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री, राइट? और जिन नोड्स को हम रीच नहीं कर सकते फ्रॉम द सोर्स नोड, दैट मीन्स जिन नोड के लिए कोई एज ही नहीं एग्जिस्ट करता फ्रॉम द सोर्स, उनको हम रीच नहीं कर सकते यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री। सो ये वाली जितनी भी हमारी नोड्स हैं जो पार्ट है ऑफ आवर स्पैनिंग ट्री कह लो या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री कह लो, ये सारी नोड्स को हम कहते हैं दे आर फॉर्मिंग द कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। Connected component. So the set of nodes which are discovered by BFS are actually the nodes which are reachable from the starting node S, and this set R is known as the connected component containing S. So if I write down the connected component of S, then the connected component of S includes all these nodes, that is S, R, Z, W, T, X, U and V, U and Y। और अगर कोई ऐसी नोड्स होती जिनके लिए कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है फ्रॉम द सोर्स नोड, सो लेट्स कॉल देम A and B. So these two nodes will not be part of our connected component. Now once we have found the connected component containing S, we can simply check whether any node T belongs to it or not in order to find the S to T connectivity in the graph. सो बेसिकली अगर हमें ये फाइंड करना है कि किसी भी दो नोड्स के बीच में, दैट इज जिसमें से एक नोड हमारी सोर्स नोड है, तो सोर्स नोड से किसी भी दूसरी नोड तक कोई कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो हम इजीली चेक कर सकते हैं वंस वी हैव गॉट दी कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर कोई भी नोड कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट है, दैट मीन्स S to T connectivity. T is that particular node. So let's say अगर मुझे फाइंड करना है S to W कनेक्टिविटी है या नहीं इन द ग्राफ,
या फिर S to Y कनेक्टिविटी है या इन द ग्राफ. सो सिंपली आई नीड टू चेक कि क्या W एंड Y आपके कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट है. अगर W और Y आपके कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट है, दैट मींस S to T connectivity or S to W connectivity or S to Y connectivity exists in the graph. Otherwise, there is no connectivity of that particular node from the source node. So एक तरीका तो हो गया कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करने का यूजिंग द BFS एल्गोरिथम. So BFS एल्गोरिथम को सिंपली एग्जीक्यूट करो ऑन अ ग्राफ. जो भी नोड्स हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री का पार्ट होंगी वो क्या होंगी, हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट में होंगी. एंड सिंपली हम उससे चेक कर सकते हैं कि किसी भी दो नोड्स के बीच में, जिसमें से एक नोड हमारी सोर्स नोड है, उनके बीच में कोई कनेक्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. सो कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए एक तरीका तो हो गया यूजिंग दी BFS एल्गोरिथम. द सेकेंड वे इज वी कैन बिल्ड दी component of R. We can build the component R by exploring G in any order starting from S. So connected component को फाइंड करने के लिए एक तरीका तो है हमारे पास यूजिंग द BFS एल्गोरिथम. एंड द सेकेंड वे इज कि हम कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ आर को बिल्ड करने के लिए एक एल्गोरिथम को यूज करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज दैट एल्गोरिथम. नाउ सपोज हमें ये ग्राफ गिवन है और इसमें हमें कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड करना है. सो वन वे इज यूजिंग द BFS एल्गोरिथम. अगर हम इसमें BFS एल्गोरिथम को रन करें सो कनेक्टेड कंपोनेंट हमें क्या देगा, कनेक्टेड कंपोनेंट विल यील्ड ऑल दीज वर्टिसेस, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. जितने भी ये वाले नोड्स हैं 9 10 11 12 एंड 13, इनसे सोर्स नोड तक कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो दैट मींस दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर कनेक्टेड कंपोनेंट. सो ये तो हो गया थ्रू BFS. द सेकंड इज इफ वी यूज दिस एल्गोरिथम. सो इसमें हमें क्या करना है, इनिशियली जो हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट है, लेट्स से सेट R, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द सोर्स नोड. देन एक एक करके हमें उन सारे एजेस को एक्सप्लोर करना है जिनका एक वर्टेक्स R में हो and the other vertex is not belonging to R. Name these edges as, let's say A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. तो सबसे पहले let's consider edge A. Now edge A के लिए एक vertex इसका R में है and the other vertex is not belonging to R. So हम add कर देंगे V to R. तो अब R में कौन कौन से vertices आ गए, source vertex तो था ही, that is vertex 1 and second भी आ गया. Then consider edge B. एक vertex R में है and the other vertex not belonging to R. So third भी आ गया R में. Now consider edge C. C edge को consider करेंगे, दोनों ही nodes इसके R में already हैं, so no need to consider this. Then coming to edge D. Edge D के लिए एक vertex that is 2 is in R, 4 not in R. So add 4 to R. Similarly 5 के लिए 2 is in R, 5 is not in R. So add 5 to R. And similarly, we will perform this for all the edges in our graph. Now, when we come to these edges, that is 9, 10 vertex, let's call this edge as K, L, N. Now, when we come to this edge, that is edge K. Now, इस edge के लिए दोनों ही vertex जो है, दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो R को belong कर रहा हो. So that means this will not be included. Similarly, this will also be not be included, and this will also not be included. So the connected component of this graph using this algorithm will be vertex 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now let's analyze the correctness of this connected component algorithm. So the claim is, now once we execute this algorithm, the set R is exactly the connected component of graph G containing S. Now how can we prove this? Now let's say for any node V जो R को belong कर रही है, R क्या है? The connected component है. So अगर कोई भी node connected component R को belong कर रही है, that means there is a path from the source node to that particular node. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई भी वर्टेक्स आपका कभी तभी कनेक्टेड कंपोनेंट का पाथ होगा अगर सोर्स वर्टेक्स से उस वर्टेक्स तक कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है इन आवर ग्राफ. नाउ लेट्स कॉल दिस आवर कनेक्टेड कंपोनेंट R. इसमें लेट्स से हमारे इनिशियली है सोर्स वर्टेक्स S,
then there is another vertex u, this is let's say another vertex v, and this is some another vertex let's say w. So initially जब हमने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तब तक हमारे इस पॉइंट तक सिर्फ दो ही नोड्स हैं जो R का पार्ट है, एक है S और एक है U. Now let's prove this by contradiction. Suppose we assume कि W जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट का पाथ नहीं है, ठीक है. W is not part of the connected component R, but S to W एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है इन आर ग्राफ. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. S से W तक क्या हमारे पाथ का नाम क्या है? दिस इज आर पाथ P. दिस एंड दिस इज आर पाथ P, दैट इज फ्रॉम सोर्स नोड टू नोड W. लेट्स से W अभी कनेक्टेड कंपोनेंट R का पार्ट नहीं है. W का जो इमीडिएट प्रीडिसेसर है कौन है? V. V भी R का पार्ट नहीं है, राइट? सो V also does not belong to R. So basically V is the first node that is not part of R after U. Now U जो immediate predecessor है V का, that is part of our connected component R, right? तो जब हमने U को include कर लिया in R, according to the algorithm, हम इस एल्गोरिथम को तब तक एग्जीक्यूट करते जाएंगे जब तक हमें कोई ना कोई एज ऐसा मिलता जाता है जिसका एक वर्टेक्स जो है वो R में है एंड दूसरा वर्टेक्स R में नहीं है. तो U के बाद जब हमने U को इंक्लूड कर लिया R में, तब हमने इस एज को कंसिडर करा. इस एज के लिए एक वर्टेक्स R में है, एक वर्टेक्स R में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे V को इन R. तब हमने इंक्लूड कर लिया V को इन R. तो अब हमारे R कॉम्पोनेंट में तीन वर्टिसेस आ गए, S, U एंड V. आफ्टर इंक्लूडिंग V हमने देखा ये वाला एज. इस एज में भी क्या है? एक वर्टेक्स जो है इसका R में है एंड दूसरा वर्टेक्स W नॉट बिलोंगिंग टू R. तो अब हमने W को भी इंक्लूड कर लिया R में. सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट तक आते आते आपका W R को नहीं बिलोंग करे, क्योंकि ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करना ही तब स्टॉप करेगी जब तक कोई ऐसा एज ना मिले जिसका एक वर्टेक्स एक R में हो एंड दूसरा वर्टेक्स इज नॉट इन R. सो दिस मीन्स अगर हम कहते हैं W नॉट बिलोंगिंग टू R, सो दिस इज बेसिकली मीन्स कॉन्ट्रडिक्टिंग द स्टॉपिंग रूल ऑफ द एल्गोरिथम. कॉन्ट्रडिक्टिंग द स्टॉपिंग रूल ऑफ एल्गोरिथम. So this proves the correctness of the connected component algorithm. So this was all about the breadth first search algorithm. In the next video, we will analyze the depth first search. So if you like this video, then do like and share this video and subscribe my channel. Thank you.